हेलो फ्रेंड्स, गिल्स मैंटोर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 28 ਜੂਨ ਹੈ, ਸੰਡੇ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਵੀਕਲੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕਲਾਸ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਟਰਡੇ ਤੱਕ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਟਸਐਪ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਬਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਵਾਂ ਬੈਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟੈਂਟਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਿਊਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਨਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਵੈਂਟਸ, ਰੈਂਕਿੰਗਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਕੀਮਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਵਾਰਡਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਕੁਝ ਨਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਈਵੈਂਟ ਅਗਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਇੰਦਰਾ ਰਸੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਇੰਦਰਾ ਰਸੋਈ ਯੋਜਨਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯੂਪੀ ਦੁਆਰਾ ਕੋਵਿਡ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੋਵਿਡ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਲੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਯੂਪੀ ਦੁਆਰਾ ਕੋਵਿਡ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੁਆਰਾ ਇੰਦਰਾ ਰਸੋਈ ਯੋਜਨਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਟੂ ਐਜੂਕੇਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ 52 ਲੱਖ ਸਕੂਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਨ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਮ ਸਟੱਡੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਤੂ ਖੇਲੋ ਇੱਕ ਤੂ ਪੜ੍ਹੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬੇਸਡ ਲਰਨਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖੇਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਕਸਚਰ, ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 5 ਦਿਨ ਦਾ ਅੰਬੀ ਬਾਚੀ ਮੇਲਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਮਾਖਾਈ ਟੈਂਪਲ ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਿਊ ਟੂ ਕੋਵਿਡ-19। ਅਸਮ ਦਾ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਅੰਬੀ ਬਾਚੀ ਮੇਲਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਮਾਖਾਈ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਯੂਜ਼ੂਅਲੀ ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਪਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਿਊ ਟੂ ਕੋਵਿਡ-19। ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਦੇ ਲਵੇ ਹੈ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸਿਡਬੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮੌਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ PM ਸਵਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਡੋਨਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੋਨਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਉਧਮਪੁਰ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ MP ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। 190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 8 ਨੌਰਥ ਈਸਟਰਨ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਰਦਰਨ ਈਸਟਰਨ ਸਟੇਟਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 8 ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। HRD ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰੀਆਲ ਨਿਸ਼ਾਂਕ HRD ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੁਕਤੀ 2.0 ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਯੁਕਤੀ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਜ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਈਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਦੇ ਲਈ। ਯੁਕਤੀ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੋਏਗੀ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ combating COVID-19 with knowledge, technology and innovation. Next है
पार्क प्लस एक दिल्ली की कंपनी है, इसने कोलैबोरेट किया आरोग्य सेतु एप्लीकेशन के नाल। आरोग्य सेतु एप्लीकेशन के नाल कोलैबोरेट किया पार्क प्लस एक दिल्ली की कंपनी ने, किस दे लई? सोशल डिस्टेंसिंग, टैक लैड सोशल डिस्टेंसिंग सोल्यूशनस दे लई, इसकी एफिशिएंसी नूं इंक्रीज करन दे लई। इस तो इलावा नैक्सट है PM केयर्स फंड। PM केयर्स फंड प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन एमरजेंसी सिचुएशनस, इस दे लई 2000 करोड़ रुपया, इस दे विचों इस फंड दे विचों 2000 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया मेड इन इंडिया वेंटीलेटर्स के लिए। 50,000 मेड इन इंडिया वेंटीलेटर्स सप्लाई किए जाएंगे, उस दे लई एलोकेट किया गया। 1000 करोड़ होर एलोकेट किया गया माइग्रेंट लेबर्स के लिए। 1000 करोड़ होर एलोकेट किया गया माइग्रेंट लेबर्स के लिए, यानी कि टोटल अमाउंट कितनी एलोकेट की गई? 3000 रुपीज़ इस दे विचों 3000 करोड़ रुपीज़ इस दे विचों कड्ढे गए। विश्वास अभियान नूं लॉन्च किया गया पलगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, पलगढ़ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफ महाराष्ट्र द्वारा इसनूं लॉन्च किया गया। नैक्सट है फ्रांस प्राइम मिनिस्टर इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर कौन ने? इमैनुअल मैक्रोन ने। इन्होंने कमिट किए 200 मिलियन यूरोज़ कि यह प्रोवाइड करनगे इंडिया नूं 200 मिलियन यूरोज़ प्रोवाइड करनगे कोविड-19 के नाल फाइट करन दे लई। यस बैंक ने की करा? एक अफोर्ड प्लान एक दिल्ली की कंपनी है, इस दे नाल पार्टनरशिप करके की किया? स्वस्थ कार्ड बनाया, एक को ब्रांड हैल्थ केयर कार्ड लॉन्च किया, स्वस्थ कार्ड अफोर्ड प्लान के नाल मिलके यस बैंक ने। कर्नाटका बैंक ने की किया? KBL माइक्रोमित्र एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, जिस दे अंडर MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजिज मिनिस्ट्रीज़ नूं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजिज इंडस्ट्रीज़ नूं फाइनैंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी 10 लाख रुपए तक की। कर्नाटका बैंक का हैडकुआटर मैंगलुरु कर्नाटका दे विच है। नैक्सट मिसलेनियस न्यूज़ दे विच 3 न्यूज़ ने अपनियां। सब तो पहले इंडिया ने की कहा कि इंडिया पाकिस्तान दे विच अपने हाई कमिश्नर की जिहड़ी स्ट्रेंथ है उसनूं रिड्यूस करके 50% कर देगा, 50% तक रिड्यूस कर देगा। और पाकिस्तान नूं भी कहा कि तुसी भी अपनी जिहड़ी हाई कमिशन की स्ट्रेंथ है उसनूं 50% तक रिड्यूस करोगे इंडिया दे विचों। एक इस दे लई किया गया वियना कन्वेंशन के जिहड़े रूल्स ने ये प्रॉपरली तरीके दे नाल डिप्लोमैटिक रिलेशनस के जिहड़े रूल्स ने उसनूं प्रॉपरली तरीके दे नाल पाकिस्तान फॉलो नहीं कर रहा। नैक्सट है IIT मंडी द्वारा एक हर्बल इन्फ्यूजन टैक्नोलॉजी नूं डेवलप किया। IIT मंडी ने हर्बल इन्फ्यूजन टैक्नोलॉजी डेवलप की एज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर हिमाचल प्रदेश के मार्जिनल फार्मर्स के लिए। यूके ने डिसाइड किया कि कमेटी बनाएगी यूके रेशियल इक्वैलिटी नूं चैक करन दे लई। रेशियल इक्वैलिटी नूं चैक कह सकते हैं या अच्छे तरीके दे नाल चैकअप करन दे लई कि कित्थे रेशियल इक्वैलिटी इंप्लीमेंट की जा सके। यूके द्वारा कमेटी बनाई गई। नैक्सट आप चलते हैं इंपोर्टेंट इनोग्रेशन के वल। पहली इनोग्रेशन पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान द्वारा की गई एक इनोग्रेशन कित्थे? कंप्रैस्ड बायोगैस प्लांट की। कंप्रैस्ड बायोगैस प्लांट किहड़ी स्टेट दे विच या किहड़ी सिटी दे विच? नमक्कल तमिलनाडु दे विच इनोग्रेट किया गया पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान द्वारा। जितेंद्र सिंह द्वारा 2 पुल इनोग्रेट किए गए। पहला पुल उधमपुर दे विच देविका नाम का और दूजा डोडा डिस्ट्रिक्ट दे विच पुनेजा नाम का। दोनों कित्थे ने? जम्मू एंड कश्मीर दे विच। खुशीनगर एयरपोर्ट की गल करिए कित्थे है? उत्तर प्रदेश दे विच। इसनूं इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिकलेयर किया गया। क्वेश्चन डायरैक्ट पूछा जा सकता है कि खुशीनगर एयरपोर्ट किहड़ी स्टेट दे विच रिलेटेड, किहड़ी स्टेट दे विच सिचुएटेड है? UP। नैक्सट है वर्ल्ड की पहली योगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया के बाहर वर्ल्ड की पहली योगा यूनिवर्सिटी कित्थे लॉन्च की गई, कित्थे इनोग्रेट की गई? लॉस एंजलस LA USA दे विच, LA USA दे विच, जिसका नाम रखा गया विवेकानंदा योग यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है धर्मेंद्र प्रधान द्वारा ही एक इनोग्रेशन होर की गई चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा के नाल मिलके। चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा कौन है? नवीन पटनायक। इन्हां दे नाल मिलके प्रोडक्ट एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर सैटअप किया गया। प्रोडक्ट एप्लीकेशन एंड
ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਦੁਆਰਾ ਐਟ ਪਾਰਾਦੀਪ ਪੋਰਟ ਉੜੀਸਾ। ਕੈਂਪੇਗੌੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੈਂਪੇਗੌੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਵੈਦਰਿੰਗ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਵੈਦਰਿੰਗ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਟ ਬੋਥ ਐਂਡਸ ਆਫ ਰਨਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ? 4 ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਟੂ ਮੇਜ਼ਰ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਪਸ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਨੇ? ਈਰਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਗੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮਿਲਟਰੀ ਬੇਸ ਇਨ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮਿਲਟਰੀ ਬੇਸ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਗੇ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਤਹਿਰਾਨ ਹੈ। ਕਰੰਸੀ ਇੱਥੇ ਰਿਆਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ BDU ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਈ। BDU ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ 3B ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਰੋਕੇਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਈਵੈਂਟਸ ਦੇ ਵੱਲ। ਕਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਲਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 32nd स्पेशल यूरेशियन ग्रुप ऑन कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म यानी कि EAG एक ग्रुप है। इस ग्रुप की जी मीटिंग है, इस ग्रुप की प्लैनरी मीटिंग है, ये ऑर्गेनाइज की गई FATF के अंडर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक ऑर्गेनाइजेशन है। इस दे अंडर EAG यूरेशियन ग्रुप ऑन कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म इसकी 32nd मीटिंग कितनी मीटिंग सी? 32nd मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई। ठीक है जी। EAG की गल करते हैं। EAG दे विच 9 मैंबर कंट्रीज़ ने इंडिया नूं मिला के EAG ग्रुप दे विच 9 मैंबर कंट्रीज़ ने। FATF की गल करते हैं 39 मैंबरस ने और पेरिस फ्रांस दे विच FATF का हैडकुआटर है। अच्छा, रीसेंटली एक न्यूज़ होर सी कि पाकिस्तान नूं FATF की ग्रे लिस्ट दे विच ही रखा गया। FATF की करता है? एक ग्रे लिस्ट डिक्लेयर करता है, एक ब्लैक लिस्ट डिक्लेयर करता है। जिहड़ी कंट्रीज़ फाइनेंशियल टैररिज्म प्रोवाइड करदियां ने या फिर मनी लॉन्ड्रिंग करदियां ने, सब तो पहले उन्होंने ग्रे लिस्ट दे विच रखा जाता है। इस दे नाल उन्होंने लिमिटेड अमाउंट ऑफ फाइनैंस प्रोवाइड किया जाता है। जिहड़ी फंडिंग वगैरह है वो लिमिटेड अमाउंट दी जाती है। उस तो बाद जो उस कंट्री नहीं सुधरती तो उसनूं ब्लैक लिस्ट के विच ऐड कर दिता जाता है। तो जिहड़ी कंट्री ब्लैक लिस्ट के विच ऐड कर दी जाती है उसकी प्रॉपरली तरीके दे नाल डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनस वालों डिफरेंट इंटरनैशनल बैंक्स वालों फंडिंग बंद कर दी जाती है। पाकिस्तान नूं ग्रे लिस्ट के विच जिहड़ा इसका टैन्योर सीगा इंक्रीज़ किया गया। नैक्सट है इंडिया आइडियाज़ जिहड़ा समिट है अलॉन्ग विद 45th US ट्रेड बिजनेस काउंसिल जुलाई दे विच हैल्ड किया जाएगा। इंडिया आइडियाज़ समिट और 45वां US इंडिया ट्रेड बिजनेस काउंसिल ये दोनों हैल्ड किए जाएंगे जुलाई दे विच। इंडिया आइडियाज़ समिट किहड़ी कंट्री दे नाल हैल्ड किया जाता है? USA दे नाल। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नैक्सट है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स यानी कि डिप्टी कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्टर कौन ने? मनसुख लाल मंडाविया। इन्होंने इनोग्रेट किया वन ऑफ द लार्जेस्ट और पहला वर्चुअल हैल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो कित्थे हैल्ड किया गया? इसनों किस द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? इसनों किया गया फिक्की द्वारा। इनोग्रेट किसने किया? मनसुख लाल मंडाविया ने इस एक्सपो नूं इनोग्रेट किया सी। नैक्सट है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। डिफेंस मिनिस्टर कौन ने? इंडिया के राजनाथ सिंह ने। इन्होंने इंडिया नूं रिप्रजेंट किया इंडो रशिया डिफेंस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मीट दे विच। इंडिया रशिया की डिफेंस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मीट दे विच इंडिया नूं रिप्रजेंट किसने किया? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। 3 दिन की विजिट पर गए थे ये मॉस्को की। इन्होंने इस दे विच भी पार्टिसिपेट किया 75th विक्ट्री डे परेड वर्ल्ड वॉर टू दे विच रशिया की विक्ट्री की 75th एनिवर्सरी ऑबजर्व की गई जिस दे विच इंडिया वालों बेसिकली 75 मैंबर कंटेंजमेंट भेजा गया सीगा। 75 मैंबर्स ट्राई मिलिट्री फोर्स भेजी गई सी, कह सकते हैं आर्मी
इंडियन नेवी और आर्मी दे एयरफोर्स के 75 परसोनल ऑफिसर्स भेजे गए थे। उड़ीसा का फेमस जगन्नाथपुरी यात्रा नूं शुरू किया गया। उड़ीसा की फेमस जगन्नाथपुरी यात्रा नूं शुरू किया गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जगन्नाथपुरी यात्रा किहड़ी स्टेट के नाल रिलेटेड है। नैक्सट है, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया 36th एशियान समिट दे विच। 36वां एशियान समिट इंडिया ने इस दे विच पार्टिसिपेट किया, जिसनूं बेसिकली होस्ट किया गया वियतनाम, हनोई वियतनाम दे विच। प्रहलाद सिंह पटेल टूरिज़म मिनिस्टर ने इन्हां द्वारा एक वैबीनार कंडक्ट किया गया। वैबीनार कंडक्ट किया गया वैदिक फूड एंड स्पाइसिस ऑफ इंडिया के उत्ते। वैदिक फूड एंड स्पाइसिस ऑफ इंडिया के उत्ते एक वैबीनार ऑब्जर्व किया गया अंडर सीरीज़ देखो अपना देश। देखो अपना देश वैबीनार सीरीज़ के अंडर। नैक्सट है, रैंकिंग डिस्कस कर लेने। सब तो पहली रैंकिंग है इंडिया दे विच, इंडिया की जी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। इंडिया की बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वर्ल्ड की 10वीं लार्जेस्ट एक्सचेंज बन चुकी है। 10वीं लार्जेस्ट एक्सचेंज बन चुकी है वर्ल्ड की इंडिया की बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कितनी मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसकी? 1.7 ट्रिलियन। 1.7 ट्रिलियन। इसनों टॉप किया गया न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज द्वारा 19.3 ट्रिलियन देना। नेक्स्ट है, रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2020 दे विच इंडिया का रैंक कितना है? 69 है, जिसनों टॉप किया गया डेनमार्क द्वारा। सैकेंड प्लेस ते नॉर्वे रहा और थर्ड प्लेस ते फिनलैंड। सैकेंड प्लेस ते नॉर्वे और थर्ड प्लेस ते रहा फिनलैंड। नेक्स्ट है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने एनुअल टीबी रिपोर्ट 2020 एनुअल टीबी रिपोर्ट 2020 नूं रिलीज़ किया, जिसनों प्रिपेयर्ड किया गया सी सेंट्रल टीबी डिवीज़न द्वारा। सेंट्रल टीबी डिवीज़न द्वारा प्रिपेयर्ड किया गया। इन्होंने कहा कि 14% तक टीबी पेशेंट्स इंक्रीज़ होए ने 2019 दे विच। अगर आप गल करते हैं लार्ज स्टेट्स के विचों सब तो ज़्यादा केसिस पाए गए गुजरात, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के विच। समॉल स्टेट्स के विचों त्रिपुरा के और नागालैंड के विच सब तो ज़्यादा केसिस पाए गए टीबी के। और यूटीज़ के विचों दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव के विच सब तो ज़्यादा केसिस पाए गए टीबी के। ट्यूबरकुलोसिस के वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे कदों ऑब्जर्व किया गया? 24 मई नूं। 24 मई नूं वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे ऑब्जर्व किया गया। नैक्सट है, इंपोर्टेंट स्कीम्स के वाल अगर चलते हैं तो सब तो पहले माइनस मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने, माइनस मिनिस्ट्री है प्रहलाद जोशी के लवे, इन्होंने लॉन्च की सत्यभामा पोर्टल लॉन्च किया। इन्होंने सत्यभामा पोर्टल साइंस एंड टैक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। साइंस एंड टैक्नोलॉजी योजना फ्रॉम आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ माइनस के लिए सत्यभामा पोर्टल लॉन्च किया गया प्रहलाद जोशी द्वारा। झारखंड गवर्नमेंट द्वारा मुख्यमंत्री श्रमिक योजना अर्बन पुअर्स के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक योजना लॉन्च की गई। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना किस द्वारा लॉन्च की गई? झारखंड गवर्नमेंट द्वारा, जिसकी फुल फॉर्म है शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च की निष्ठा विद्युत मित्र स्कीम। निष्ठा विद्युत मित्र स्कीम फॉर वुमेन एम्पावरमेंट अंडर विच बिल्स विल बी पेड बाय वुमेन सैल्फ हैल्प ग्रुप्स। की होएगा कि निष्ठा विद्युत मित्र स्कीम लॉन्च की गई उन्होंने परसनस के लिए जोड़े लोग बिल नहीं भरते हैं या किसी तरीके कारण करके लेट हो गए हैं, तो उन्होंने इस चीज़ों के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए वुमेन सैल्फ हैल्प ग्रुप्स की हैल्प लीती जाएगी MP गवर्नमेंट द्वारा। नैक्सट है, एज अ पार्ट ऑफ एफर्ट्स टू फाइट मेल न्यूट्रीशन एंड मैटरनल मोर्टेलिटी, त्रिपुरा गवर्नमेंट ने की करया मेल न्यूट्रीशन को टैकल करने के लिए एक स्कीम लॉन्च की मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार स्कीम। मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार स्कीम जिसके अंडर न्यूट्रीशन किट्स प्रोवाइड की जाएगियां, जिसदे घी होएगा, जैगरी यानी कि गुड़ होएगा, प्रैगनेंट वूमेंस को ये चीज़ां प्रोवाइड की जाएगियां ताकि मेल न्यूट्रीशन और मैटरनल मोर्टलिटी मेल न्यूट्रीशन रिड्यूस किया जा सके और मैटरनल मोर्टलिटी के रेट को भी रिड्यूस किया जा सके।
नैक्सट है कुछ इंपोर्टेंट एप्लीकेशंस रिलीज़ की गई। सब तो पहले तेलंगाना ने TS वैदर एप्लीकेशन नू लॉन्च किया वैदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने के लिए, वैदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने के लिए। नैशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया हिंदी टेस्ट फ्यूचर ऑन नैशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल एप्लीकेशन। नैशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल एप्लीकेशन के उत्ते नैशनल टेस्ट फ्यूचर लॉन्च किया गया नैशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा, जिसकी अनाउंसमेंट की गई सी HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशांक द्वारा। HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशांक द्वारा इसकी अनाउंसमेंट की गई। नैक्सट है एक मोबाइल एप्लीकेशन ई ब्लड सर्विसेज लॉन्च की गई मोबाइल एप्लीकेशन इंडियन रैड क्रॉस सोसाइटी द्वारा इसकी एप्लीकेशन को डेवलप किया गया और लॉन्च किया गया हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन। इस तो इलावा साइंस एंड टैक्नोलॉजी और अर्थ साइंस मिनिस्टर ने चांदनी चौक दिल्ली तो लोक सभा MP ने। IIT बॉम्बे द्वारा एक चिप डेवलप की गई ध्रुवा नाम की चिप नू डेवलप किया गया, जिसनू स्मार्टफोन्स और नैविगेशन डिवाइसिस दे विच यूज़ किया जाएगा। किसकी हैल्प के नाल? नेविक दे नाल। इंडिया की जिहड़ी नैविगेशन टैक्नोलॉजी है नेविक, इस दे नाल इसनू यूज़ किया जाएगा। इंपोर्टेंट एग्रीमेंट्स अगर आप डिस्कस करिए, सब तो पहले है राजस्थान गवर्नमेंट ने साइन किया एक ट्री पैट्रीएट एग्रीमेंट, यानी कि 3 ऑर्गेनाइजेशनस 3 जनिया दे विच यह एग्रीमेंट साइन किया गया। राजस्थान गवर्नमेंट ने किस दे नाल कीता? पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया एंड एजुकेशनल कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड दे नाल। पावर ग्रिड कारपोरेशन और एजुकेशनल कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड दे नाल किस दे लई? 100 स्मार्ट क्लासरूम्स बनाने के लिए। 100 स्मार्ट क्लासरूम्स बनाने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने इन्हां दे नाल एग्रीमेंट साइन किया। लद्दाख गवर्नमेंट ने प्लास्टिक बोटल्स और अदर मटीरियल्स नू ऑफिसिस दे विच, गवर्नमेंट ऑफिसिस दे विच बैन किया है। किहड़ी UT ने कह सकते हैं बैन किया इन्हां चीज़ों नू? लद्दाख द्वारा। नैक्सट है कैबिनेट कमेटी ऑन एक्नोमिक अफेयर्स की कैबिनेट कमेटी ने अप्रूव किया एनीमल हसबेंडरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। एनीमल हसबेंडरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड 15,000 करोड़ रुपया इस दे विच अमाउंट की किया गया, फंड यूज किया गया। कैबिनेट ने अप्रूव किया इन स्पेस नू अप्रूव किया गया। इन स्पेस की है? इंटरनेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। इंटरनेशनल नहीं आएगा थे, इंडियन नेशनल आएगा। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। इसने की इस दे अंडर की किया जाएगा कि जिहड़ी प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ ने उन्होंने स्पेस एक्टिविटीज़ दे विच पार्टिसिपेशन दिता जाएगा। स्पेस एक्टिविटीज़ दे विच पार्टिसिपेशन दिता जाएगा इन स्पेस प्रोजेक्ट के अंडर। नैक्सट है स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर ने महेंद्र नाथ पांडे स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर ने इन्होंने पार्टनरशिप की IBM के नाल टू अनवील फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म स्किल्स बिल्ड रेगनाइट। एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा IBM के नाल मिलके स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर द्वारा। अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंडर जी यूनियन कैबिनेट है वह अप्रूव करेगी 2% सबवेंशन अप्रूव किया 12 मंथ के लिए अंडर 2 शिशु लोन अकाउंट्स ने जोड़े एलीजिबल बोरोअर्स ने जोड़े उसके उन्होंने 2% सबवेंशन प्रोवाइड की जाएगी 12 महीनों के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंडर। नैक्सट है एग्जिम बैंक ने की करा? एग्जिम बैंक का हैडकुआटर मुंबई के 1982 के इसनूं बनाया गया सी। इसके हैड ने डेविड रैशनहुआ। इन्हां द्वारा एक लाइन ऑफ क्रेडिट एक लोन प्रोवाइड किया गया 20.10 मिलियन का, 20.10 मिलियन $, या कह सकते हैं 153 करोड़ रुपए फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल बिल्डिंग टू निकारागुआ कंट्री नूं हॉस्पिटल बिल्डिंग की रीकंस्ट्रक्शन के लिए लोन प्रोवाइड किया गया एग्जिम बैंक द्वारा। निकारागुआ की कैपिटल मानागुआ और करंसी इत्थे कोडोबास चलती है। नैक्सट है
ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫੰਡ ਨੇ PIF, ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ PIF, ਇਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ 2.32% ਸਟੇਕ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਜੀਓ ਪਲੈਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀਓ ਪਲੈਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.32% ਸਟੇਕ 11,367 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੀਓ ਪਲੈਟਫਾਰਮਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਡੈਪਟ ਫਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀਓ। 24% ਸਮਥਿੰਗ ਇਸਨੇ ਸਟੇਕ ਆਪਣਾ ਟੋਟਲ ਵੇਚਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਜੀਓ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 9th ਰਿਚੈਸਟ ਪਰਸਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਫੋਰਬਸ ਦੇ 9th ਰਿਚੈਸਟ ਪਰਸਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਇੱਕ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਮੈਪਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀ ਮੈਪਿਲਰੀ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਮੈਪਿਲਰੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੋਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ITF ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੋਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ, ਡੀਕਾਰਬਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੋਰਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਸੀ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਟਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਟੂ ਬੂਸਟ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਅਗਰਵਾਲ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ IIT ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ UNWFP ਦੇ ਨਾਲ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਟੂ ਆਫਰ ਰਿਸਰਚ ਬੇਸਡ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਟੂ ਸਟੋਰ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਔਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ IIT ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ UNWFP ਦੇ ਨਾਲ। UNWFP ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਰੋਮ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 36 ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਔਰ ਡੇਵਿਡ ਬੈਸਲੀ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਮਾਲੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਇੱਕ ਸੋਲਰ ਪਾਰਕ ਦਾ 500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਸੋਲਰ ਪਾਰਕ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਇੰਡੀਆ ਦੀ NTPC ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ NTPC ਨੂੰ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਮਾਲੀ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਨੇ 500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਲੀ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਬਮਾਕੋ, ਕਰੰਸੀ ਈਕੋ ਹੈ, ਔਰ NTPC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ NTPC ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ $10 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। $10 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਰਿਲੀਫ ਐਂਡ ਵਰਕਸ ਏਜੰਸੀ ਫॉर ਪੈਲੇਸਟਾਈਨ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ। ਪੈਲੇਸਟਾਈਨ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ $10 ਮਿਲੀਅਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਵਾਰਡਸ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 93rd ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡਸ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਓਸਕਰ ਅਵਾਰਡਸ ਨੂੰ ਰੀਸ਼ਡਿਊਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਲੋਬ ਅਵਾਰਡਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗਲੋਬ ਅਵਾਰਡਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? USA ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਜਰਮਨ ਬੁੱਕ ਟ੍ਰੇਡ। ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫॉर ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਦੇ ਲਈ, ਫॉर ਹਿਜ਼ ਵਰਕ ਔਨ questions of global justice। नेक्स्ट है जस्ट मनी और स्टिलैप्स दो इंडियन फर्म्स ने जिन्होंने इंक्लूड किया गया वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की 2020 टैक्नोलॉजी पियोनीयर्स दे विच। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की 2020 टैक्नोलॉजी
ਪਿਓਨੋਰ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇੰਡੀਅਨ ਫਰਮਸ ਜੈਸਟ ਮਨੀ ਔਰ ਸਟੀਲੈਬਸ ਨੂੰ ਇੰਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕੋਲੋਗਨੀ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਮਿਸ਼ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੈਜੈਂਡਸ ਆਫ ਸੁਹੇਲ ਦੇਵ ਦ ਕਿੰਗ ਹੂ ਸੇਵਡ ਇੰਡੀਆ। ਲੈਜੈਂਡਸ ਆਫ ਸੁਹੇਲ ਦੇਵ ਦ ਕਿੰਗ ਹੂ ਸੇਵਡ ਇੰਡੀਆ, ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਅਮਿਸ਼ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੁਆਰਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर। इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कौन ने? प्रकाश जावड़ेकर ने। इन्होंने इनोग्रेट किया वर्चुअल इंडिया पवेलियन ऑफ इंडिया एट केन्स फिल्म फैसटिवल। केन्स फिल्म फैसटिवल दे विच इंडियन पैविलियन नू इनोग्रेट किया गया इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर द्वारा। महाराष्ट्र ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अनाउंस किए गुलाबाई संगमनेरकर और मध्यावंती दांडेकर को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड महाराष्ट्र द्वारा दिते गए गुलाबाई संगमनेरकर और मध्यावंती दांडेकर को। नेक्स्ट है 2 टाइम कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मैडलिस्ट। 2 बार कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मैडलिस्ट जीत चुकी संजीता चानू वेट लिफ्टर ने इन्हों अर्जुन अवार्ड 2018 का प्रोवाइड किया गया ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੋਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਸੀਗੇ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਡੋਪਿੰਗ ਦੇ ਚਾਰजेस ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਹੁਣ ਡੋਪਿੰਗ ਚਾਰजेस ਰਿਮੂਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਔਟਿਸਟਿਕ ਪ੍ਰਾਈਡ ਡੇ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ। 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਡੇ। ਵਰਲਡ ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਡੇ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ। 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੀਡਿੰਗ ਡੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੀਡਿੰਗ ਡੇ ਇਨ ਦਾ ਔਨਰ ਆਫ ਫਾਦਰ ਆਫ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਫਾਦਰ ਆਫ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਔਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ PN ਪੈਨੀਕਰ। ਇਸ ਵੀਕ ਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਵੀਕ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ 18 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਮੰਥ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਰੀਡਿੰਗ ਮੰਥ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਰਸ ਸ਼ੂ ਕਰੈਬ ਡੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਰਸ ਸ਼ੂ ਕਰੈਬ ਡੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਵਰਲਡ ਰਿਫਿਊਜੀ ਡੇ ਵੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਲਡ ਰਿਫਿਊਜੀ ਡੇ ਜਿਸ ਦੀ ਥੀਮ ਰਹੀ ਸੀ ਐਵਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਾਊਂਟਸ। ਐਵਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਾਊਂਟਸ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਥੀਮ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੋਗਾ ਡੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ। 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੋਗਾ ਡੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਥੀਮ ਰਹੀ ਯੋਗਾ ਫॉर ਹੈਲਥ ਯੋਗਾ ਐਟ ਹੋਮ। ਯੋਗਾ ਫॉर ਹੈਲਥ ਯੋਗਾ ਐਟ ਹੋਮ। ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਈਵੈਂਟ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਐਟ ਹੋਮ ਯੋਗਾ ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ। ਯੋਗਾ ਐਟ ਹੋਮ ਯੋਗਾ ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਸ ਦੀ ਥੀਮ ਰਹੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਨੂੰ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿੰਨਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ? 6th ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਯੋਗਾ ਡੇ ਦਾ। ਇਹ 6th ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਹਾਈਡਰੋਗ੍ਰਾਫੀ ਡੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਵਰਲਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡੇ ਵੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 23 ਜੂਨ UN ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਡੇ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਡੇ ਕਦੋਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 23 ਜੂਨ ਨੂੰ। 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਡੋ ਡੇ ਵੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਡੋ ਡੇ ਕਦੋਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 23 ਜੂਨ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਵਰਲਡ ਓਲੰਪਿਕ ਡੇ। ਵਰਲਡ ਓਲੰਪਿਕ ਡੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਰਲਡ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 1894 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਲੋਜ਼ੇਨ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਜ਼ੇਨ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਲੰਡਨ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਡੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਦਾ ਡੇ ਆਫ ਸੀਫੇਰਰਸ। ਡੇ ਆਫ ਸੀਫੇਰਰਸ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਲੰਡਨ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਥੀਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਸਾਲ ਕੈਂਪੇਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਸੀਫੇਰਰਸ ਆਰ ਦਾ ਕੀ ਵਰਕਰ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਕੈਂਪੇਨ ਕਿਸ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਸੀਫੇਰਰਸ ਆਰ ਦਾ ਕੀ ਵਰਕਰਸ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਡਰੱਗ ਅਬਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਇਲਿਕਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਡਰੱਗ ਅਬਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਇਲਿਕਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਥੀਮ ਰਹੀ ਸੀ ਬੈਟਰ ਨੌਲੇਜ ਫॉर ਬੈਟਰ ਕੇਅਰ। ਬੈਟਰ ਨੌਲੇਜ ਫॉर ਬੈਟਰ ਕੇਅਰ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਥੀਮ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1989 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। अपॉइंटमेंट्स की गल करते हैं। सब तो पहले न्यू एंड रीन्यूएबल मिनिस्ट्री द्वारा प्रोजैक्ट डेवलपमेंट सैल, न्यू एंड रीडेवलपमेंट मिनिस्ट्री द्वारा प्रोजैक्ट डेवलपमेंट सैल एक कमेटी बनाई गई इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए एनर्जी सैक्टर के। इसनों हैड कौन करेगा? अमितेश कुमार सिन्हा, नाम इंपोर्टेंट रहेगा। इस कमेटी को हैड करेगा करनगे अमितेश कुमार सिन्हा। IBBI इस द्वारा एक कमेटी बनाई गई। इस द्वारा एक कमेटी को बनाया गया कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन और लिक्विडेशन के लिए। कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी एंड रेजोल्यूशन लिक्विडेशन के लिए। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है IBBI दी। इसके हैड बनाए गए उदय कोटक। IBBI की गल करते हैं। इसके हैड ने MS साहो और इसनूं 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ इस बोर्ड ਨੂੰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ बनाया गया ਸੀ। नीति आयोग द्वारा एक पैनल बनाया गया। इस द्वारा भी एक कमेटी बनाई गई जिसके अंडर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और होर कंपनीज़ ਨੂੰ इंक्लूड किया गया। इन्हां द्वारा की किया जाएगा? एक जॉब प्लेटफॉर्म डेवलप किया जाए माइग्रेंट लेबरस ਨੂੰ ਦੇ ਲਈ। एक जॉब प्लेटफॉर्म डेवलप करने के लिए नीति आयोग ने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और होर कंपनियों के नाल मिल के एक पैनल बनाया। जिसनों पैनल ਨੂੰ हैड कौन करनगे? CEO ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत इस कमेटी ਨੂੰ हैड करनगे। नीति आयोग ਨੂੰ न्यू दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ हैडकुआटर है। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ नीति आयोग बनाया गया ਸੀ। इस दे वाइस प्रेजिडेंट ने राजीव कुमार और इस तो इलावा इसके जोड़े प्रेजिडेंट होंगे ने नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर होंगे ने इसके प्रेजिडेंट, यानी कि वाइस चेयरमैन राजीव कुमार और चेयरमैन ने नरेंद्र मोदी। वसीम जाफर ਨੂੰ उत्तराखंड रणजी टीम का हैड कोच अपॉइंट किया गया। उत्तराखंड रणजी टीम का हैड कोच अपॉइंट किया गया वसीम जाफर ਨੂੰ। ब्रिटिश फॉर्मर वूमेन क्रिकेट टीम कैप्टन, ब्रिटिश की फॉर्मर वूमेन क्रिकेट टीम कैप्टन ने जोड़े क्लेयर कॉर्नर ਨੂੰ फर्स्ट फीमेल प्रेजिडेंट अपॉइंट किया गया मैलबॉर्न क्रिकेट क्लब का। मैलबॉर्न क्रिकेट क्लब का पहली फीमेल प्रेजिडेंट अपॉइंट किया गया क्लेयर कॉर्नर ਨੂੰ। इस तो इलावा के संगाकारा, कुमार संगाकारा का नाम भी याद रखना है। यह मैलबॉर्न क्रिकेट क्लब के फर्स्ट नॉन ब्रिटिश परसन बने सी, फर्स्ट नॉन ब्रिटिश प्रेजिडेंट बने सी के संगाकारा। मैलबॉर्न क्रिकेट क्लब का हैडकुआटर लंडन के विच है। सौरव गांगुली और सुनील चेत्री ਨੂੰ ब्रांड एंबेसडर अपॉइंट किया गया JSW सीमेंट का। नैशनल चैंपीयन निकी कालियाकंडा पोनाचा इन्हों ITF इंटरनेशनल टैनिस फैडरेशन के मैनस टैनिस पैनल के इलैक्ट किया गया। इंटरनेशनल टैनिस फैडरेशन के मैनस टैनिस पैनल के इलैक्ट किया गया। लंडन UK के हैडकुआटर है इंटरनेशनल टैनिस फैडरेशन का और हैड ने इसके डेविड हैगर्टी। विजय खंडूजा ਨੂੰ इंडिया के एंबेसडर अपॉइंट किए गए जिम्बाब्वे। इंडियन एंबेसडर टू जिम्बाब्वे विजय खंडूजा अपॉइंट किए गए। जिम्बाब्वे कैपिटल हरारे है और करेंसी इत्थे US डॉलर्स चलती है। नेक्स्ट है साधु रमन पंचनाथन इंडियन अमेरिकन ने इन्हों डायरैक्टर अपॉइंट किया गया नैशनल साइंस फाउंडेशन ऑफ USA के नैशनल साइंस फाउंडेशन के डायरैक्टर अपॉइंट किए गए साधु रमन पंचनाथन। प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप 50 फिल्म मेकरस और एक्टर्स के ऐड किए गए जिन्होंने एज ए एंबेसडर्स इनवाइट किया गया टोरोंटो इंटरनेशनल फिल्म फैसटीवल के। टोरोंटो इंटरनेशनल फिल्म फैसटीवल के। अच्छा, टोरोंटो इंटरनेशनल फिल्म फैसटीवल का किनवा एडिशन है? 45th एडिशन है। ये भी याद रखना। T रविशंकर अपॉइंट किए गए चेयरमैन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल टैक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज IFTAS, इंडियन फाइनेंशियल टैक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज जी कि RBI की एक सबसिडरी है। इसके चेयरमैन अपॉइंट किए गए T रविशंकर और इसके CEO अपॉइंट किए गए N
राजेंद्रन। एवरिस्टे न्यायदशमई, एवरिस्टे न्यायदशमई इन्हां नूं प्रेजिडेंट अपॉइंट किया गया एक कंट्री का बुरुंदी, बुरुंदी कंट्री के प्रेजिडेंट अपॉइंट किए गए एवरिस्टे न्यायदशमई। बुरुंदी कैपिटल गीतेगा है और करंसी इत्थे फ्रैंक चलती है। बुरुंदी कैपिटल गीतेगा, करंसी फ्रैंक चलती है। फॉर्मर आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल, उर्जित पटेल आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं 24 नंबर के, 24 नंबर के गवर्नर रह चुके हैं। इन्हों अपॉइंट किया गया चेयरमैन किसका, नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनैंस एंड पॉलिसी का, नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनैंस एंड पॉलिसी का चेयरमैन अपॉइंट किया गया आरबीआई के पुराने गवर्नर उर्जित पटेल। नैक्सट है स्पोर्ट्स न्यूज़ डिस्कस करते हैं। नागालैंड के इंदिरा गांधी स्टेडियम जिहड़ा कि कोहिमा दे विच है, नागालैंड का इंदिरा गांधी स्टेडियम कित्थे है, कोहिमा दे विच है। इसनूं चूज़ किया गया खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए, खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए इसनूं चूज़ किया गया। गवर्नमेंट द्वारा 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स अनाउंस किए गए कि 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स बनाए जाएंगे डिस्ट्रिक्ट लैवल के उत्ते। नैक्सट है मिनरेवा अकैडमी फुटबॉल कप, मिनरेवा अकैडमी फुटबॉल कप दे लई रिकमेंड किया गया, मिनरेवा अकैडमी फुटबॉल कप नूं राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दे लई रिकमेंड किया गया इन द कैटेगरी ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड नर्चरिंग ऑफ बर्डिंग टैलेंट। इसनूं रिकमेंड किया गया पंजाब गौरमेंट और फीकी द्वारा, पंजाब गौरमेंट ते फीकी द्वारा मिलकर इसनूं रिकमेंड किया गया। फीकी की गल कर रहे हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज 1927 दे विच बनाई गई सी। दिल्ली दे विच हैडकुआटर है और संगीता रेड्डी इज़ द चेयरमैन। ऑस्ट्रेलिया ते न्यूजीलैंड मिलके 2023 का फीफा वूमेंस वर्ल्ड कप होस्ट करनगे। किहड़ी दो कंट्रीज़ मिलके फीफा वूमेंस वर्ल्ड कप होस्ट करेगी 2023 का, ऑस्ट्रेलिया ते न्यूजीलैंड। अज दे लई बस इन्ना ही। आई होप सानू सैशन पसंद आया होगा। सैशन नू लाइक और शेयर जरूर करते रहो अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।